Was it underperformance by Australia today? I can't believe that World Cup had this script for us. I really felt that Australia were trying to lose the game. The way they bowled today, Pratik, they were just trying to bowl it in the slot, and the Scotland batters were just hitting it in the breeze. It was going for sixes. But where I thought Scotland really let themselves down is batting in the last 5 overs. They could only score just 42 runs. And also the Yeah. bowling and the catching was just terrible, because this was a wonderful opportunity that Australia wanted to give to Scotland. They were like, "Ki, come on, please beat us, Scotland. Please defeat us, Scotland." But Scotland didn't take the chances. Even in the last over, Tim David hit a ball in the air that should have been caught, and it could have been 3 of 3 with a new batter coming in. But Soul dropped the catch, he dropped the match, and I just can't believe it. Actually, Pratik, if you see 13 overs, Australia were 91, they needed 93 in the last 7 overs. And what happened from there on? You had Travis Head and Marcus Stoinis, two of the most explosive players playing, and their partnership was 31 of 28. We've Yeah. been used to seeing Head start like a lightning bolt. We didn't get that today. But after that 13th over, uh, we saw Travis Head and Marcus Stoinis hitting 50 runs in next 15 balls, and then the match totally turned into Australia's favor. So I don't think Australia will be happy or sad today. I don't know how they will be feeling, because they have allowed England to qualify, which was in their hands. They could have underperformed really and lost this match, and let England go out of the tournament. But now I want England to take the revenge. I want England to win versus Australia in World Cup semi-final. That will be awesome. What's your reaction, Pratik? And then we'll go to Shansbury. Yeah, so I hadn't catch the Scotland's batting. I saw a little bit of Macmillan's innings, who played fantastic. Like he hit sixes and scored a fantastic 60. But when I was watching Australia chase, I did not see any half measures. I thought Scotland genuinely bowled well. ट्रेविस हेड ने बहुत सारे शॉट्स ट्राई किए थे, बट फील्डर्स के पास जा रहे थे, और कैचिंग बहुत अच्छी थी स्कॉटलैंड की जब तक, अंटिल द लास्ट ओवर व्हेन दे, नहीं नहीं, बट ट्रेविस या हेड को पहले भी ड्रॉप Travis Head was dropped earlier also. Like Travis Head या got dropped earlier also in the innings. बट I इंटेंट don't हाफ think थी या you saw पूरी the थी. match, Pratik, actually fully. If you had followed the match, I think you would have a different opinion. बट इंटेंट हाफ थी, फुल थी ऑस्ट्रेलिया की, उससे मैटर नहीं है. आई थिंक स्कॉटलैंड को 89 रन 7 ओवर्स में डिफेंड करने थे, और वो डिफेंड कर लेने चाहिए थे. Obviously, yes. श्रेयांश भाई, आपने मैच देखा क्या? What was your feeling today? सी द बेस्ट पार्ट इज ना कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पूरा मजा चखाया, मतलब आखिरी Aus- तक. Australia हाँ, ये बात तो played है. with England's emotion for 33 overs. Out of 40 overs, 33 overs they played with या England's feelings. मतलब वो मतलब होटल रूम में आखिरी. इंग्लैंड वाले देख के सोच रहे होंगे, भाई क्या कर रहे हो, भाई वो डाल ही दो खाना नहीं खा वो. पा रहे होंगे इनफैक्ट होटल रूम में बैठ के. इनफैक्ट even the 19th over, if you look at it, they only scored 8 runs. Tim David could have Yes. finished in that particular over itself. Hmm. But they for initial 6 overs they played slow. They were Yeah. 18 runs behind Scotland. Yes. They give in the power play to Maxwell, who went for 18 runs. So Yes. Australia played with their emotions, matlab entirely. And being a professional side like Australia, I knew that they would not mess up the chase. Hmm. They would defeat Scotland, but they played with England's emotion, is what I feel Hmm. basically. Because Exactly, every Shreyansh moment bhai, you you are. see, every moment you see, when Stoinis and Head were hitting like anything after they get set, then together they both got dismissed in a span of very small Yeah, delivery. Again, the two new batsmen came into play, and that is how they played, just continue playing play. with the emotion. लास्ट ओवर तक खींच के ले गए 19.2 19.3 तक.
And Scotland could have scored more runs. They played very poorly in last 3 overs of their batting. Yes. So that because if they had 10, 11, 12 runs extra, which they could easily have got, because their last two batsmen scored at strike rate less than 100. Yeah. I would also like to say in the end result was fair. England had only lost one match technically in this round, and so they deservingly qualified. But Australia, we expect them to be ruthless. They will even lose to further their own ambitions of winning the World Cup. And they knew that they had the opportunity to eliminate one contender today. And I'm sure most of the Australian players wanted to lose today. I can say that they dropped Cummins and Hazelwood, two of their best bowlers today. They dropped them. They want just to pretend that they wanted to give them rest. We know that 4 overs is nothing for a pro like Pat Cummins, who did not miss a single IPL match. In 16 matches he played, 17 matches he played straight in IPL. He didn't rest for a single match. So I don't think there was any reason to give Pat Cummins a rest. And he has already been rested before also. Hazelwood also had been rested before. So I am sure they were trying to, and look at the power play start, man. They gave Maxwell the over in the power play. He went for 18 runs in that over. 54 Scotland scored in the power play. They scored 84 in the middle overs. Zampa was giving full tosses or some half trackers. Zampa got smashed. Then the start it is so funny. Like you are saying that they were trying to lose. Shreyans Bhai is saying no, they were just only trying to tease England. And I'm saying no, it was a fair game. Scotland just competed well. You are to. I would say no, I would just say that it was a fair game. Totally Australia did not try to lose, but they thought, okay, it's a good match to experiment. That's why they did not play their main bowlers, and that's why they experimented with Maxwell. And see, man, when have you seen Shreyans Bhai? You're on mute, by the way. And when have you seen? It is 50 Shades of Australia. That every person is seeing the other color of Australia aspect of the game. Yeah, so it's a 50 Shades of Australia. Actually, wherein everybody was on their toes. Even the Scotland were feeling that they could win. Yeah. When have you seen Travis Head being one run in 7 balls? He left it actually happened in one of the IPL games. In one of the IPL games also it happened. Like he had a flurry in all the games, but one game he actually scored run a ball 50, if you remember. An off spinner is starting. He's just leaving the ball. He just left one ball. He played a proper defense. Even in test match में ऐसा नहीं करता है Travis Head. इतना proper उसने जो defense किया. At the end of the day, they won the match and they got an amazing practice. Like अगर 89 runs चाहिए 7 overs में, they have the confidence now to chase that 13 runs and over. They have the confidence versus Scotland against very poor and bowling and fielding. But Shikhar, अगर उनको हारना होता ना, if they would have wanted to lose, then 180 was a very good target where they could have goofed up the chase intentionally and could have lost. There was no problem, and very easily they could have shown that they didn't mess it up as well. Because 180 was enough to So I'll tell you what happened. There were 2 or 3 players in the team who wanted to win it. Who actually wanted to win it. One was Stoinis, one was Tim David. These players Wade was also, because when Head was hitting those sixes, Wade was very animated in the dressing room. So one was Wade. They really, some of these players wanted to win it, but I think most of the players wanted to lose it. If you see Stoinis and Travis Head partnership, it was 31 of 28. Next 15 balls, 50 runs scored. Next 15 balls. So they tried to goof up the chase, but then they reached a position when they said ki we can't goof up. If we goof up, people will suspect us. ICC may start an investigation against us that we have goofed up an easy chase. They may start an investigation and find conclusive evidence that you can't lose from 20 of 20 balls. You can't lose from that kind of position. It will look very suspicious. No, but you could easily lose from 89 from 7 overs, no? Yeah. 89 from 7 overs, they could have lost. But Stoinis played some, those big hits. I don't know if even Head hit 3 sixes straight on shot. That was amazing. But I think Head wanted to get out. He was trying to get out, but he hit those 3 sixes. But he was hitting 90-meter sixes for fun. 3 back to back. Shikhar is trying to prove that Australia was trying to lose. I am sure. वो जीत गए.
But मैं I'm very आपको disappointed with Sharif actually. He's their most experienced pace bowler and he bowled shit. आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद स्कॉटलैंड टीम. सोल, शरीफ, ये लोग क्या बॉलिंग कर रहे थे, और साला लीस्क एंड No, मतलब Leask कि and ये, Marquardt actually bowled well. Marquardt तो मैक्सवेल को जो आउट किया था, it was a अबे wonderful क्या delivery. मतलब, जीता वो ऑस्ट्रेलिया तो देना चाहती थी तुम्हें मैच, तुम ले लो मैच हाँ, यार. तुम वो भी मैच नहीं ले रहे हो, तुम कैचेस नहीं पकड़ रहे हो. ट्रेविस हेड का कैच जब ड्रॉप हुआ था वो कितना स्कोर पे था, रन अप बॉल भी नहीं था वो, शायद 14 ऑफ वो 15 कुछ डिफिकल्ट था. कैच था ना, याद नहीं आ रहा कहाँ पे था. डिफिकल्ट कैच तो सारे ही थे. ऑस्ट्रेलिया ने भी 7 कैच छोड़े हैं अभी तक. उन्होंने टूर्नामेंट में 1 या 2 कैच छोड़ा था. आज के मैच में 7 कैच छोड़े ऑस्ट्रेलिया ने. दैट्स अनबिलीवेबल. मतलब आई हैव नेवर सीन ऑस्ट्रेलिया ड्रॉप 7 कैचेस विद इन 20 ओवर्स. तो भाई मैं मतलब इसीलिए कह रहा हूँ, मतलब मैं तो श्योर हूँ कि वो इंग्लैंड को मजे ले रहे थे वो। मुझे ये दो थ्योरीज और पसंद आ रही है. एक मजे ले रहे थे, और वो थ्योरी मुझे शिखर की भी अच्छी लगी कि शायद बीच में फिर उनको लगा होगा यार हमारे साथ तो सैंड पेपर वाला हुआ है, उससे इमेज इतनी खराब हुई है, तो बीच में जाके अचानक से कॉन्शियस जागा होगा कि नहीं भाई तोड़ो इनको एंड मैच जीतो. और फिर स्कॉटलैंड ऑल्सो डिडंट हेल्प टू द कॉज ना, लास्ट में वो हाँ. खराब खेले, कैच बट एक छोड़ा, बात तो है, ये डेविड का भी कैच डेंजरस थिंग तो छोड़ा। हो गई है ऑस्ट्रेलिया से. माना आईसीसी इसके अगेंस्ट है, पर आप क्यों इतनी भयंकर टीम जो एक्चुअली लास्ट वर्ल्ड कप जीती है उसको एक खुला छूट दे रहे हो? और नहीं, आज लेकिन अभी इसके लिए प्रेस अभी कॉन्फ्रेंस सब में टीमों के बोलने लिए की क्या गड़बड़ हो गई जरूरत है. थी? बाकी अगर सेवन ये के 7 टीम्स थोड़ी सी डरेंगी कि इंग्लैंड खुली हुई नहीं, है. अगर ये करना भी है तो इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने की क्या जरूरत है? हेजलवुड ने हक दिया था एक्चुअली. हाँ, नहीं नहीं, स्कॉट वो मैं बहुत ये, गलत किया ना। हाँ हेजलवुड ने बोला था. इनफैक्ट टिम पेन ने बोला था ऑस्ट्रेलिया के किसी न्यूज चैनल पे कि ऑस्ट्रेलिया शुड लूज. और अगर आप लॉजिकली देखो तो इसमें गलत क्या है? मैं तो ये इस पे 1 मिनट डिबेट करना चाहता हूँ कि यस. इसमें गलत क्या है. अगर मैं नहीं नहीं, अपने चांस, मुझे, मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब कि वर्ल्ड यूपीएससी कप जीतो. एग्जाम में टॉप करूं. तो अगर मेरा फ्रेंड जो कि मेरा सबसे बेस्ट कॉम्पिटिटर है, तो वो उसको नींद की अब, दवाई दे देगा। वो आप नहीं, उसकी नींद को नहीं, मैं उसका डायरेक्टली कुछ नुकसान तो कर नहीं रहा हूं ना. वो ऐसे पोजीशन पे है कि मैं उसको बस उठाना नहीं चाहता हूँ. मैं अपना, एक दिन मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो वो मेरे से पीछे रह जाएगा. तो मैं एक दिन पढ़ाई जैसा नहीं थ्री करूंगा. इडियट्स मूवी में बताया था कि एग्जाम के जस्ट पहले ऐसे रूम के नीचे से सीडीज पास कर दी थी कि जाओ देखो ये सब मूवीज देखो, ये करो मैच के हाँ जस्ट बट पहले. मतलब मैं कोई उसका नुकसान डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ, बट मैं खुद अपना नुकसान करवा के उसका नुकसान करवा रहा हूँ. नहीं तो नहीं, इसमें, नुकसान की बात छोड़ो, मैं अपना फायदा देख रहा हूँ. 7 टीम्स जो हैं उसमें से कंपटीशन थोड़ा कम कर रहा हूँ. हाँ वर्ल्ड कप जीतना कंपटीशन कम आसान कर नहीं रहा है. हूँ. ठीक है, मेरा एग्जाम्पल 8 मे टीम मे नॉट बराबर बी लेवल्स दैट पे, गुड. आपका सिर्फ 12.5% चांस होता है वर्ल्ड कप जीतने का. आप एक टीम भी कम करोगे तो 12.5 से परसेंट आपका 17% हो जाता है वर्ल्ड कप जीतने का. एग्जैक्टली exactly. मतलब कि अभी काफी चांसेस है कि इंग्लैंड, मतलब मेरा एग्जाम्पल शायद बहुत अच्छा नहीं था. मे बी आई फाइंड अ बेटर एग्जाम्पल फॉर आवर वीकली रिव्यू. बट द पॉइंट इज कि अगर मतलब कि वो हार भी जाते आज, तो आई डोंट सी देयर वाज एनीथिंग रॉन्ग बाय देम. दे आर जस्ट और ट्राइंग इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट. अगर आप हार रहे हो, अगर आप, इट्स नॉट फॉर मॉनिटरी रीजन, आप कोई पर्सनल गेन नहीं है, आपका इंडिविजुअल गेन नहीं है, बट आपके टीम का गेन है, आपके कंट्री का गेन है. तो आप क्यों ना हार जाओ स्कॉटलैंड से, मैं और मतलब. देता हूँ अगर उसका हम एग्जाम्पल, क्विकली रिव्यू मैं करें देता हूँ कि उसका एक एग्जाम्पल। मोदी जी हम्म हार के भी जीत गए, 240 सीट्स आई, अपोजिशन इतना हम्म खुश हो गया, फिर भी मोदी जी पीएम बन गए, पूरी कैबिनेट मिनिस्टर सेम रिपीट हो गए। हम्म ये हम्म वैसा हो गया कि मोदी जी कुछ जगहों से हारे, लेकिन हम्म 240 रह गया और नेशन हम्म वही चलाते। वैसे ही हम्म हो गया हम्म ऑस्ट्रेलिया अगर हार जाता तो। हम्म लेकिन एक और इसका दूसरा पॉइंट भी है, हम्म, पता है क्या? जो भी आज मान लो इंग्लैंड या स्कॉटलैंड जाता, वो जाता सेकंड वाले ग्रुप में, हाँ. तो वहां पर लोगों को इजी टीम क्यों देना? वहां पर लोगों नहीं को इजी टीम क्यों देना है? बट इंग्लैंड तो एक खुद एक बहुत स्ट्रांग टीम है. आज हाँ, मैं उन्होंने, वही बोलना चाह रहा हूँ शायद भाई. अगर हम क्विकली रिव्यू करें सेकंड लेग, सेकंड जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर जिस ग्रुप का हमने नाम रखा है, उसमें अभी 4 टीमें जो पहुंची वो है वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, यूएस और इंग्लैंड. अब साउथ अफ्रीका बहुत खराब फॉर्म में है और यूएस का फर्स्ट वर्ल्ड कप है, तो बिल्कुल इंग्लैंड बहुत ज्यादा फेवरेट है सेमीज पहुंचने के. और हाँ, मेरे को तो लग रहा है फिर से इंडिया को मिल जाएगी तो और किसी का गेम बिगाड़ देगी इंग्लैंड बिल्कुल. इंग्लैंड बहुत डेंजरस टीम है, हमें पता है. देखो आज क्या हुआ इंग्लैंड और नामीबिया के मैच के, मैं 2 मिनट बात करना चाहूंगा. 13 for 2 थी आज इंग्लैंड 2 ओवर में. वहां से हैरी ब्रुक ने ऐसा मारा है, मतलब कि ऐसा काउंटर अटैक किया है. उसके बाद मोइन अली, लिविंगस्टन. लिविंगस्टन तो पहले बॉल पे आके छक्का मारा है. मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ नामीबिया थी मे बी नॉट दैट ग्रेट अ बॉलिंग अटैक, बट द वे बट दे नेक्स्ट प्लेड. 8 ओवर में 100 से ज्यादा बनाए उनने. हाँ. हाँ, और उसके बाद तुम देखो,
नामीबिया के ओपनर्स को उन्होंने इतना तड़पा दिया, इतना टॉर्चर कर दिया कि उनको हम्म रिटायर आउट करना पड़ा अपने ओपनर को, क्योंकि वो लोग 5 ओवर में 34 रन बनाए थे इन द चेज ऑफ 127 इन 10 ओवर्स। उनको अपने ओपनर को रिटायर आउट करके डेविड वीजा को लाना पड़ा, जो हम्म। बेचारा आज लास्ट इंटरनेशनल गेम खेल रहा था, उसको लाना पड़ा। उसने 27 रन मारे 12 बॉल में, फिर भी ये लोग 40 रन से हार गए, मतलब 10 ओवर के मैच में। और लास्ट उसके पहले वाले मैच में तो इंग्लैंड ने भाई 3 ओवर में फिनिश किया था, तो ओमान इंग्लैंड। को धो दिया था इंग्लैंड ने। हाँ। और ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड की वाले मैच में भी इंग्लैंड 13 ओवर्स तक फेवरेट्स थी। वो लास्ट में पता नहीं क्या बॉलिंग हुई थी, जैम्पा हेजलवुड ने इतना हम्म, टाइट किया था सबने। हम्म। तो उस दिन भी इंग्लैंड मतलब अच्छा खेल और रही थी, मिडिल और में अब तू लॉ मैच ऑफ में थी। एवरेजेस भी देख ले प्रतीक, ऑस्ट्रेलिया एक बार ऑलरेडी इंग्लैंड को हरा चुकी है। अगर इनका हाँ सेमीज या फाइनल में मैच हुआ हाँ। तो मुझे लगता है लॉ ऑफ एवरेज विल सपोर्ट T20 में, इंग्लैंड। दे विल सपोर्ट इंग्लैंड। तो यू नो एनीथिंग कैन हैपन। और यही हुआ था ऑस्ट्रेलिया से 2019 वर्ल्ड कप में भी, उन्होंने लीग स्टेज में इंग्लैंड को हराया था और वो पर सेमीफाइनल में हार गए थे। हाँ, हाँ। So they had many reasons to actually throw England out today. या आई वांटेड देम एक्चुअली टू डू Yeah. दैट, मतलब ठीक है स्पोर्ट्समैन And स्पिरिट, like Shreyans bhai स्पोर्ट्समैन said, स्पिरिट। 7 overs for 89 में परफेक्टली आप उसको प्ले कर सकते थे, एक्ट कर सकते थे कि भाई बहुत ज्यादा रन तो नहीं बने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे उन्होंने वो जो स्टॉइनिस और हेड ने छक्के मारे, मुझे मतलब बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। रूथलेस अरे ऑस्ट्रेलिया क्योंकि आई उनके एक्सपेक्टेड। दिमाग में अरे क्योंकि उनके दिमाग में कहीं हार थी नहीं ऋषभ। देख अब शिखर, अब तू खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। वो सिर्फ इंग्लैंड को टीज करना चाहते थे कि भैया तुम मजे करो पूरा। हम्म, नहीं तो यार 3 छक्के ऐसे थोड़ी पड़ते हैं यार। वो उस बॉलर के अगर आप 3 ओवर बाकी देख लो और वो वाला ओवर हटा लो, तो उसने 3 ओवर में 10 ही रन दिए हैं। इसमें टीम डिवाइडेड होगी यार, अब मुझे भी लग तो रहा है कि 6 कुछ ओवर्स लोगों में ने चाहा 36 होगा और कैसे आप कुछ लोग एक्सप्लेन बिल्कुल करोगे? ऐसे होंगे कि भाई मैं अल्फा हूं, मैं तो जिताऊंगा अपनी टीम को, मैं किसी इंग्लैंड से नहीं डरता। तो दो तरह के थ्योरीज होंगी, टीम जो माइंडसेट होगा। एक्चुअली मिचेल मार्श ने लास्ट में बोला है कि वी हैड अ चैट अबाउट इट, और अल्टीमेटली वी वांटेड टू विन, ऐसा उसने तो बोला है वैसे, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, बट वी डोंट नो कि या क्या था। बट दे वांटेड टू, अच्छा हुआ हेड को थोड़ा फॉर्म मिल गया है अभी। ये चीज ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि ही वाज स्ट्रगलिंग रियली बैडली यार क्या सिंस। हिटिंग की थी लेकिन हेड ने, आई थिंक वो लेकिन इंडिया तीन इंडिया के लिए ही सिक्सेस। बुरा हुआ है ना। अगर फाइनल में इंडिया होगा। हम्म, हाँ। फाइनल में वही इंग्लैंड को रोकना है अब ऑस्ट्रेलिया को, अब यही एक्चुअली जब उम्मीद हेड कर ने सकते तीसरा हैं। छक्का मारा था ना, पता नहीं क्यों 2 मिनट के लिए अहमदाबाद याद आ गया था। मुझे तो लग रहा है, मुझे अभी भी लग रहा है हेड आउट होने की कोशिश कर रहा था, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। आई फील हेड वाज ट्राइंग टू गेट आउट, बट आई वो वॉज आउट। कंफ्यूज कि अरे हर आउट बॉल होने पे के सिक्स सौ क्यों तरीके मार होते रहा हैं है। भाई। आउट आई वॉज होने के 100 कंफ्यूज तरीके होते हैं। कि भाई तूने आउट 45 बॉल में मतलब कि 50 देखो किए क्या है ना, और अब वो तेको हर सोचा बॉल कि पे छक्का एटलीस्ट, मार रहा नहीं वो है। आउट मतलब कैसे होगा, मतलब वो सोचा कि ठीक है मैं मारने का कोशिश करता हूँ, रिस्क हाई रिवॉर्ड प्ले करता हूँ। अगर हाई रिस्क लूंगा शायद आउट भी हो जाऊं, जैसे टिम डेविड ने लास्ट ओवर में किया। 3 रन में 3 बॉल में आपको क्या जरूरत है छक्का मारने की, आप हाँ हाँ मुझे बिल्कुल बताओ। सही। पॉइंट आप मुझे पॉइंट। बताओ, 3 बॉल पे 3 रन है, आपको छक्का मारने की कोई जरूरत है? दूसरे एंड पे वेड है। 4 बॉल में 3 थे एक्चुअली, चार 3 में 3 होने वाले थे। हाँ, हाँ। 4 बॉल में 3 रन थे, क्या जरूरत थी? तो मतलब कि इट्स जस्ट लाइक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी दे वर यूजिंग। चलो अच्छा है, मतलब हम्म। आई डोंट थिंक, मतलब हम ये चलो अच्छा है डिबेट। यार। सेकंड सेकंड हाँ। सेकंड ग्रुप में भी कुछ टफ टीम्स होगी। अदरवाइज हाँ, इंडिया का ग्रुप जो है वो वैसे भी ग्रुप ऑफ डेथ हो चुका है। अफगानिस्तान इन T20 इज अ बीस्ट। इंडिया का ग्रुप मुझे बोरिंग लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। इंडिया, बांग्लादेश, नहीं लेकिन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है ना यार। इंडिया ऑस्ट्रेलिया अब मुझे लग अफगानिस्तान रहा है एंड बिल्कुल इक्वल ग्रुप्स हैं एक्चुअली, क्योंकि आपके वेस्ट इंडीज हम्म, इंग्लैंड अच्छी टीम हो गई, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया अच्छी हो गई, फिर उधर अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका दोनों में ऐसी रहेंगी कि ये एक्चुअली सेमीज जा सकती हैं। ऑन देयर डे किसी को भी हरा सकते एंड हैं। देन बांग्लादेश और यूएस भी एक्चुअली एक मैच जीत सकती है, मतलब किसी ना किसी को हराने का मादा रखेंगे वो भी। बांग्लादेश यस, यूएस नो। आई डोंट या थिंक सो। तो यूएस साउथ अफ्रीका को क्या पता चैलेंज कर दे, मतलब साउथ अफ्रीका कैसा खेल रही है अभी, हर मैच तो लास्ट ओवर में जीतते हैं वो। हम्म, मतलब साउथ तो अफ्रीका तो इस बार बहुत लकी हो रही है। मतलब उनसे ज्यादा खराब दम कोई नहीं लग खेला रहा ही नहीं साउथ इस बार अफ्रीका टीम में। में। भाई करेक्ट। मैं कल बोल रहा था ना कि दुनिया में जितना भी लास्ट 20-25 साल में जितने भी इनजस्टिस हुए हैं उनके साथ, 25 नहीं, हम्म लास्ट 35 साल में जितने भी इनजस्टिस हुए हैं साउथ अफ्रीका के साथ, रेन, डीएल शीट को गलत पढ़ना, फिर हम्म। टाई, फिर मतलब जितने भी इनजस्टिस हुए हैं सबका बदला क्रिकेटिंग गॉड चुका रहे साउथ अफ्रीका को इस बार, मतलब कि लेकिन वो बात अलग है कि यूजलेस मैचेस में मतलब हाँ क्रिकेटिंग गॉड उनको हेल्प कर रहा है।
अब और बहुत नेपाल के फकॉल टॉप अगेंस्ट ऑर्डर साउथ अफ्रीका का, प्रॉब्लम वहां है। अब तो लग रहा है टेम्पो बबुआ की जरूरत है उनको टॉप ऑर्डर अभी में। तो मतलब नेपाल के अगेंस्ट मतलब आप देखो कि वो पीठ पे लग के, बैट्समैन के पीठ पे लग के क्लासन के पास बॉल आ गई, मतलब कि वहां पे वो अगर बैट्समैन डाइव भी मार देता या नॉर्मल रनिंग भी करता तो भी वो पहुंच जाता। बट वो क्या भाग रहा था, उसने कुछ स्ट्रेच किया अजीब टाइप का, मतलब कि इट वाज वेरी वियर्ड। तो इट वाज नेपाल्स गेम, एटलीस्ट सुपर ओवर तो बनता ही था, लेकिन क्रिकेटिंग गॉड्स मेहरबान है साउथ अफ्रीका पे कि क्लासन वहीं पे खड़ा था जहां पे पीठ पे लग के बॉल आई और क्लासन ने डायरेक्ट हिट मार दिया। बहुत सारी शिखर टीम्स मैं ऐसा तो श्योर नहीं हूँ। हुआ, शिखर हाँ। ऐसा तो नहीं हुआ कि इस बार कुदरत का जो निजाम है वो भूल गए कि कौन से ग्रीन कलर को सपोर्ट करना है, और उन्होंने पाकिस्तान की जगह साउथ अफ्रीका को कर लिया। क्योंकि भाई बांग्लादेश से भी हार रहे थे वो, है ना, मतलब अचानक से जीत गए, नेदरलैंड से भी हार ही रहे थे, कोई चांस ही हाँ। नहीं था, मिलर ऐसे स्पिन विकेट पे खेल लिया। तो मेरे को लग रहा है जो कुदरत है वो इस बार कलर भूल गया है। थोड़ा डार्क He is ग्रीन पे supporting चले green. गए। He is supporting green, but a different green. कुदरत चलो ये इज सब लाइक और डिफरेंट डिस्कस शेड्स करेंगे ऑफ उसमें, ग्रीन। रिकैप में, वर्ल्ड कप रिकैप में। अब अगले 2 दिन तो बहुत मतलब बोरिंग। बेकार मैचेस हैं, बोरिंग है बोरिंग। दोनों। आज लास्ट पाकिस्तान रिलेवेंट का मैच आखिरी था। मैच, पाकिस्तान का आखिरी मैच देखा जाएगा अगर हुआ भाई तो। मैं तो देखना चाहता हूँ क्या मायामी, सॉरी फ्लोरिडा लॉडर हिल जो में है, मेक कोई मैच होगा। क्या वो रिकॉर्ड बनाएगी कि एक भी मैच नहीं होगा, 4 में से 4 वॉशआउट का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाएगी या नहीं, मैं तो ये देखने भाई के लिए इंटरेस्टेड हूँ वहां पे कोई जो आज। लोकल होगा जो बोला होगा कि मैं सारे मैच जाऊंगा, उस ऐसा कोई आदमी होगा। भाई 3 में से 3 अभी तक वॉश आउट हो चुका है लॉडर हिल में, मैं देखना चाहता हूँ। और 2 में तो बारिश भी नहीं हो रहा था, मतलब मैच के टाइम 2 में बारिश भी नहीं हो इसमें रहा पैसा था। वापस नहीं मिलता ना, वॉश आउट हो जाए तो। नहीं नहीं, वापस मिलता है, वापस मिलता मिलता है, है। अगर मिलता एक है। भी हम्म, बॉल नहीं होती है तो वापस मिलता है, इंश्योर्ड रहता है ना, इट इज हम्म। इंश्योर्ड। हाँ हाँ। सो दे विल गेट बैक। आईसीसी लौटा देगी पैसा। एंड कल बट अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज की बैटल में मजा आएगा, वो जो मैच होगा वो भी। लेकिन फायदा नहीं है ना यार, ये सीडिंग सीडिंग स्ट्रक्चर की वजह से हाँ इट डजेंट मैटर हुएवर विंस। तो ये थोड़ा सा इन्होंने रैंडम करा है, बट हाँ, ये तो ठीक है। बहुत ही बेकार है, मतलब फर्स्ट सेकंड का भी कुछ इंसेंटिव नहीं है, कोई हाँ इंसेंटिव नहीं बहुत है ज्यादा फर्स्ट ही। मैच करने का। यस करेक्ट, एक अच्छा पॉइंट है, बहुत ज्यादा डेड रबर है, मतलब हमको पहले से अब 8 टीमें पता हो चुकी हैं और हाँ हाँ, हम्म, बेसिकली हमें 8 टीम्स पता है और ये भी पता है उनके ग्रुप्स क्या होंगे। अगर सीडिंग वाला सिस्टम नहीं रहता तो तो एटलीस्ट तीन ग्रुप्स नहीं चार पता होते। ग्रुप्स हाँ हाँ 3-4 मैचेस अभी, मतलब 2 मैचेस, 2 दिन का जो मैच है थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता, देखने में थोड़ा मजा आता लोगों को कि क्या कौन से ग्रुप में कौन आएगा। बट अब ये भी पता है लोगों को कि कौन सी टीम क्वालिफाई कर चुकी है और क्या क्या ग्रुप्स हैं, सब कुछ पता है लोगों को। हाँ, इसलिए वो कोई वैल्यू नहीं है कल के मैचों की। हाँ, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। बट नाउ द वर्ल्ड कप विल मूव इनटू एंटायरली वेस्ट इंडीज, राइट, फॉर द। यस। अभी यूएस, मुझे सबसे दया यूएस के ऊपर आ रहा है कि साला उनका होम वर्ल्ड कप है लेकिन अब वो होम मैचेस नहीं खेलने वाले हैं, अब वो वेस्ट इंडीज में जाके मैचेस खेलने वाले आई हैं। डोंट थिंक पहले कभी गए भी होंगे वो वेस्ट इंडीज खेलने। हाँ, ये भी सही बात है। हम्म आई डोंट और थिंक वहां सो। के पिचेस है स्पिन, इनके पास एक ही स्पिनर है, हरमीत सिंह। हाँ लगने वाली है और वैसे। इंडिया के स्पिनर्स को अब मौका मिलेगा टीम में हाँ, आने का। हाँ, अब तो मौका मिलेगा अब जडेजा शाइन करेगा। ही। हाँ, वो नहीं दुबे शाइन दुबे करेगा भी अब भाई, कह रहा वो है, नहीं दुबे कर भी अब पाएगा सोच शायद। रहा होगा अब आएंगे स्पिनर्स, अब अब कुलदीप आएंगे को भी शायद स्पिनर्स। मैच मिलेगा भाई। कुलदीप को तो हाँ, अब डेफिनेटली तो मिलेगा, मिलेगा। कुलदीप तो डेफिनेटली खेलेगा। चहल का बेचारा वो, मुझे नहीं लगता अभी भी वो खेल पाएगा। कुलदीप तो खेलेगा डेफिनेटली। हम्म, तो दैट्स द रैप। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। बहुत अच्छा आपने खेला। और इंग्लैंड स्पेशली एक समय -1.8 हम्म, के नेट रन रेट पे थी, वहां से मतलब कि उन्होंने जैसा फिनिश किया है। और हमारे इंग्लैंड प्रीव्यू पे किसी ने कमेंट भी किया है कि इंग्लैंड आर ऑलरेडी आउट, एलिमिनेटेड। आपने क्यों मतलब कि प्रीव्यू डाला है, मतलब मैंने लास्ट संडे हम्म, प्रीव्यू डाला था तो किसी ने हम्म। कमेंट किया था कि इंग्लैंड आर ऑलरेडी एलिमिनेटेड। तो उन भाई साहब को भी मैं रिप्लाई कर दूंगा कि टेक दैट। don't count your chickens uh, बिफोर द हैच। before they hatch. So yes, तो congratulations to England and Australia। देखते हैं अब आगे क्या रहता है, वर्ल्ड कप काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है। एंड प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल गाइस, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। एंड अगर कोई बात बुरी लगी है तो सॉरी फॉर दैट, यू कैन कमेंट एंड राइट टू अस, विल श्योरली रिप्लाई। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर।